else has it led to? So this is coherence, and you find that coherence is a state or situation in which all the parts or ideas fit together well so that they form a united whole. So this is how the it is the act of coherence actually which brings all these things together. अब इसको मैं connect कर दूंगा coherence को कि coherence आपकी all the parts or ideas fit together well so that they form a united whole. Coherence आमतौर पे ये तो चले छोटे पैराग्राफ्स हैं तो उसके अंदर हम इसको कर लिया हमने अरेंज कर लिया है इनको. Let me give you another exercise in arranging some paragraphs और उसको आप करें cohesion and coherence उसकी. Just a minute. स्टूडेंट्स हमने पैराग्राफ अरेंज करने की पहले एक्सरसाइज की थी हमने कि नहीं? ओके, जस्ट अ मिनट. मोहम्मद मुनव्वर शहजाद. I got only 2 classes on campus in batch 258. Due to some family problems, I started joining online classes. Um, Excuse me, Ms. Anam Bhatti, coordinator. ये जी सर। मुनव्वर शहजाद का केस भी देखें. अब ये यहाँ गलत क्लास में इनको ऐड किया गया है. बैच 258 सेकंड क्लास जो थी ये इनको आप ऑनलाइन 17 में डालें प्लीज. सर ये मैंने नहीं किया, ये इस्लामाबाद कैंपस से हुआ है बिकॉज इस्लामाबाद बैचेस नौरीन और वो सारे डील करते हैं, तो मैं ये चीज उनको कन्वे कर दूंगी, वो ये चीज देख लेंगे. जी प्लीज, वरना इसको मिलेगा कुछ नहीं इसको. जी सर, ऑफ ये कोर्स. ये वाले स्टूडेंट्स. ठीक है थैंक यू सर. वेरी मच. थैंक यू. Okay, students, let's practice this cohesion and coherence a little bit more. Arrange the following sentences into a meaningful paragraph. मुझे आप ABCD लिख के देंगे यहाँ पे. वेलकम मुनव्वर. CDBEA. जकरिया देखो यार, इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है. इट कैसे हो सकता है? इट इज अ रिजिड प्रोसेस. इट से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं?
Even though, yes, Yasir, Mohammed Yasir, even though South Korea. So you think D is the starting point? Do others agree with this? सारा सारा इकट्ठा लिख के भेजे ना, बी भी अकेला नहीं लिखना अक्सा, आसमा सारा लिखे ना, all the five, B, C, A, E, D, शहरोज. नहीं चलिए एक हम डिसाइड कर लेते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि टॉपिक सेंटेंस इसके डी है, डेल्टा. Even though South Korea is called the land of the morning calm, it's a highly competitive society. This is the starting point. Let me clarify this. D delta is the starting point. That is the topic sentence. Usman name, you are very much close. नहीं, not Usman, sorry. इनमें से अभी तक ये, हाँ उस्मान नेम, यस. उस्मान तुम्हारा पहले वाला बेहतर था, DE वाला. नहीं जरताशा, ए पे हम कैसे जा सकते हैं? डी के फौरन बाद हम ए पे कैसे जा सकते हैं? जकिया पूरा लिखो इसको. उमर ए पे नहीं जा सकते ना. Competitive society, that is why you can reason. DEBACE. DEBCA. Okay. ओके, DEBCA. वकास काफी टाइम लगाया यार तुमने इसको करने में. उस्मान तीसरी दफा यार तुम भेज रहे हो, बाद आ जाओ तुम. नहीं जन्नत तुमने पहले भी भेजा है, ये बार बार नहीं चलेगा. बस एक दफा आपने कर लिया, तुक्के नहीं लगाने. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. It's understood that it's D is the topic sentence, that even though South Korea is called the land of the morning calm, it's a highly competitive society. अच्छा. अब ये इसके बाद that extends to the job market. DE इसकी जो एग्जैक्ट इसका जो सीक्वेंस है वो D के बाद E आ रहा है. That extends to the expat job market, which is very limited for those who don't speak Korean. So, ठीक है.
अब आ गया डंकन हैरिसन. हेड हंटिंग एजेंसीज have to prove to the authorities that they tried to hire a Korean for a given position first, but could not find the right candidate. He says, गलत हो गया. B नहीं आ सकता क्योंकि he says आ गया है. So B नहीं आ सकता. He कौन है? जब तक हम उसको define नहीं करेंगे. So that is why C. It is a rigid process to bring an expert over to Korea, says Duncan Harrison, who heads the sole office of recruitment firm Robert Walters. C करने के बाद अब आप जाएंगे उसके ऊपर. Head hunting agencies B and then comes A. Headhunting agencies have to prove to the authorities that they try to hire a Korean for a given position first, but could not find the right candidate, he says. That is why people are selected very carefully who can compete in that rigid market and satisfy the Korean authorities. A is a very good concluding sentence. जो कुछ कहा गया है D में, जो topic sentence में, even though South Korea is called it's a highly competitive society. तो फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो दोबारा जिक्र कर रहा है टू compete in that rigid market and satisfy the Korean authorities. So this is how it goes. D E C B A. अब मुझे बताएं आप में से किसका ठीक था? जीनिया नवाज, सिद्रा गुल, माहीन चीमा, तबिंदा, फातिमा, यूसुफ. Okay, so this is how it goes. Second attempt, okay, Zakriya. एक और एक्सरसाइज करनी है इस तरह से आपका जो कोहेरेंस और कोहेजन जो है वो जरा ठीक हो जाए आपस में. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं जरा दिखाना चाहूंगा. ठीक है, एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेट मी शो यू वन थिंग. देखो ये जो इसका, ये देखो कोहेसिव टाइज क्या थी इसके अंदर, ये. ठीक है. और ये इसकी कोहेसिव टाइज थी. इसके बगैर आप इसको दैट, ये है कोहेसिव टाइज है. आपने इनको पकड़ना है. ये देखो दैट इज वाई, आपने इनको पकड़ना है. ये देखें किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं पीछे या नहीं हो रहे. और आई लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. ये जो मैंने 4 हाईलाइट किए हैं, 5th हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि टॉपिक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है. इवन दो सो डी जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी सारे आप देखें सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं इन वर्ड्स की वजह से. ये इसकी कोहेसिव टाइज हैं इस पैसेज की. समझ आ रही है ना? अब आपको समझ आएगी कि किस तरह से ये वर्ड्स आपस में इसको कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं. लेट्स लुक एट another exercise. Here you have 4 sentences only. जी बोलिएगा.
Okay, it had only 4 sentences. नहीं तौसीक 2 तो नहीं ना दे सकते आप। हाँ ये जरा सिंपल था। किरण यू आर करेक्ट। मलिहा दोबारा करो। तौसीक दोबारा। तौसीक डी से कैसे स्टार्ट हो सकता है यार? पहले आप डिफाइन तो कर लें। इन कंबोडिया, breakfast has always been the most important meal of the day. ठीक है। All right. Okay, so you are close, right? You are ज्यादातर लोग आप में से ठीक कर रहे हैं। BDAC, no, not यूसुफ CA नहीं है, AC है। मुझे cohesive ties, let's try to find out. In Cambodia, breakfast hasn't always been the most important meal of the day. Many rural Cambodians, अब यहाँ पे कंबोडिया जो था ये इसके आपस में ये लिंक है ना आपस में, और कंबोडिया आगे चल के ये हो गया। स्टार्ट देयर डे, देयर कौन है? कंबोडियंस। इन द फील्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक स्नैकिंग ऑन एप्पल और गावा व्हाइल दे वर्क एंड देन ब्रेक फॉर एन अर्ली लंच। इफ दे, अब ये देखो दे कौन है? ये वही कंबोडियंस हैं। ये यू सी किस तरह आपस में कनेक्टेड है ये। इफ दे डू ईट अ मॉर्निंग मील एट होम इट इज यूजुअली, इट क्या चीज है? मॉर्निंग मील। See, it is usually leftover rice cooked into a thick porridge. Now, my question is कि नंबर C का जो it है, C का जो it है, ये क्या चीज है? It is served with क्या? A thick porridge. आप समझ आई कनेक्शन इनका आपस में? It is served with fry flakes of dried fish or with palm sugar sap, sweet mango and fish. These are, ये पहचानने की कोशिश करें टेक्स्ट के अंदर कि कौन सी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। DBAC, सॉरी BDAC ये। सो आप कोहेसिव टाइज को पहचाने आपस में। ये जो इट है ना, बजाय इसके कि आप सेंटेंस पूरे को पकड़ें, सबसे पहले पहचाने ये जो इट, दिस, दे, दीज जो लगा हुआ है, इनको आप, ये हैं जो आपकी कोहेसिव टाइज हैं जिससे टेक्स्ट पहचाना जाता है। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड। एक और करें जरा। नाउ दिस वन, ये जरा काफी ध्यान मांगेगा और it would require some concentration. अब कुछ धुआं निकलेगा आपके दिमाग में से, जोर लगेगा।
सी, यू थिंक इसमें तो बड़ा क्लियर है कि जी सी इसका जो है वो टॉपिक सेंटेंस है, उसके बाद क्या होता है? अनम्स वेरी गलत हो गया, शरोज गलत हो गया। जीनिया दोबारा ट्राई करो। आसमान तो बस हम दोबारा ट्राई करें। यस नताशा, हवाई P8 लाइट कौन है यार तुम? निकालना पड़ेगा आपको बाहर, हवावे P8 लाइट। तुम फैक्ट्री से निकल के सीधे आ गए हो। तो सरताज खान नाम आप ठीक लिखो, फैक्ट्री से निकल के सीधे क्लास में आ गए। नाम ठीक करें बेटा अपना, सरताज खान। ओके। Mhm. Now this one was a little bit, it was a very clear case, but I know that it can confuse some of the people. सही बताऊं तो मैंने सिर्फ इसके फर्स्ट दो सेंटेंसेस आखिर से उठा के शुरू में रख दिए थे बस। Do you get my point? I just moved the last two sentences into the beginning of this paragraph, and that's all. So the actual sequence is C, D, E, A, B. थोड़ा सा जरा कंफ्यूजिंग है कि ये नंबर 3 पे एग्जाम्पल कैसे आ गई है। सो यहाँ पे लोग सी डी ई के बाद या ए लगाने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट, लेकिन एक्चुअल सीक्वेंस इसका यही है, सी डी ई ए बी। All right, so that's all for the cohesion and coherence. Now you have a clear idea कि टेक्स्ट के अंदर कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या चीज होती है। घूम रहा है अब आपको हम ब्रेक देते हैं छोटी सी, ताकि आप अपनी दिमाग का घूमना जो है वो बंद करें ठीक करें। ब्रेक के बाद वापस आके आपको कंक्लूजन सिखाते हैं, जीपीएस सिखाते हैं और ओवरव्यू पैराग्राफ सिखाते हैं, ठीक है? लेकिन टेक्स्ट की आपको समझ आ गई कि टेक्स्ट देखें होता क्या है। हम आपने कभी इस तरह टेक्स्ट को नहीं तो देखा, यू हैड नेवर सीन इट लाइक दिस, कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड कैसे है सेंटेंस, तो ये सारा कुछ, और हियर यू हैव इट। तो सीखा आज, ठीक करें ना फिर इसको। Okay, so we are going on a break and let's come back by 7:50. Okay, 7:50. Let's come back. मुझे फैमिली के साथ यही होता है, बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं लगा। वेरी सॉरी स्टूडेंट्स।
हेलो, ओके। ये कौन कह रहा है कि ये अब हम फर्स्टली सेकेंडली वाली गलती नहीं करेंगे? फर्स्टली सेकेंडली नहीं लिखेंगे ना, जाहिर है। ओ सीढ़ी है ना यार, अभी पूरी तरह से फिट नहीं है ना। अच्छा जी, सो ये आपकी होगी कोहेजन एंड कोहेरेंस, एंड लेट्स स्टडी दी कंक्लूजन। लो भाई स्टूडेंट्स, कंक्लूजन पैराग्राफ। ये शायद मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि ऐसे कंक्लूजन सम्स अप योर आर्गुमेंट और डिस्कशन ऑफ द एसे, एंड इट सम्स अप एवरीथिंग दैट यू हैव सेड सो फार। ये इसलिए कहना पड़ता है कि बाद औक़ात स्टूडेंट्स सिर्फ आखिरी 3-4 पैराग्राफ्स जो हैं उनको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जबकि कंक्लूजन पैराग्राफ जो है उसने पूरी जो आर्गुमेंट है आपकी उसको वाइंड अप करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर शुड बी नो न्यू पॉइंट इन द कंक्लूजन। ये बहुत मसला है कि हमारे लोग कंक्लूजन में या तो सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, कोई नई बातें जरूर लिखते हैं जिससे उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। जिस वजह से कंक्लूजन का इफेक्ट खराब हो जाता है। सो देयर शुड बी नो न्यू पॉइंट इन द कंक्लूजन। जो कुछ आपने सिर्फ ऐसे में जिक्र किया है बस उसको वाइंड अप करना है, नथिंग मोर देन दैट। वो जो रिकमेंडेशंस होती हैं, वे फॉरवर्ड या सजेशंस हैं, वो इससे पहले जो पैराग्राफ्स थे वो उसमें आप दे चुके हैं। अब दोबारा जो है वो देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये कि कंक्लूजन पैराग्राफ में कोई अननेसेसरी रिकमेंडेशंस, रेमेडीज, सजेशंस जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अब दोबारा कंक्लूजन के अंदर ना वो सब कुछ घुसाने की कोशिश ना करें। यहां पे सिर्फ अपनी जो आर्गुमेंट है उसको वाइंड अप करें। बहुत हद तक कंक्लूजन जो है वो इंट्रोडक्शन का रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया था और आउटलाइन दी थी, आउटलाइन का थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दी थी, उसी तरह से यहां पर भी आपने थोड़ा सा आउटलाइन को टच देना होता है, इसलिए कि आउटलाइन पूरी तरह से एक समरी होती है एसे की। तो जब आप उसको वाइंड अप कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप उसका जिक्र करेंगे कि इस एसे के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। लेकिन यहां पे उसका जो स्टाइल है, आप जो इंट्रोडक्शन में जो आर्गुमेंट हमने स्टार्ट की थी, यहां पे अब आपका जो जो स्टाइल है वो लुकिंग बैक एट का है कि इस ऐसे में ये चीजें डिस्कस की गई हैं, दीज पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड, और सम अप करते हैं इसको।
एक और प्रॉब्लम जो कंक्लूजन में होती है कि जब वाइंड अप कर रहे हैं अपनी आर्गुमेंट को, तो लोग अक्सर गलती से इन माय ओपिनियन या एज आई या वी हैव डिस्कस्ड लिख जाते हैं। ये अवॉइड करना होता है। आई भी यूज नहीं हो सकता, वी भी यूज नहीं हो सकता यहां पे। ओके लेंथ इसकी 150 to 180 words, longer than the body paragraphs but shorter than the introduction paragraph. ये तो नसर अहमद, अब आपके अपनी सोचने वाली बात है ना बेटा, कि आई नहीं यूज करना तो क्या यूज करना है भाई? आप बताएं मुझे जरा। नहीं यूज हुई, मैंने कहा जो है सिद्रा गुल, ये क्या लिखा हुआ है? फिर आप कहते हैं सर सॉरी गलती हो गई है। ये क्या लिखा हुआ मैंने? नासिर बताएं मुझे, क्या लिखेंगे? सिद्रा क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? It has been discussed. It has been discussed. It has been said, as has already been discussed. और भी तो तरीके होते हैं ना, थोड़ा जरा अपना माइंड यूज करना होता है ना। जी पूरी ऐसे में नहीं आई वो यूज करना, मैं पहले दिन से खप रहा हूं इस चीज के ऊपर, अब 6 लेक्चर गुजर गए हैं इसके ऊपर। अनम रहमान, हर चीज को एज अ थर्ड पर्सन प्रेजेंट करना है, शुरू से हम कहते चले आ रहे हैं। सीखे ना इस तरीके को। ये कोई मेरे बताने वाली बातें तो नहीं है कि आई नहीं यूज करना तो क्या करना है। चलो पॉइंट नंबर 5 रिपीट करें। पॉइंट 5, कंक्लूजन इज समवॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। मैंने कहा जिस तरह से, नहीं फाइनल भी का वर्ड भी नहीं यूज होता हमजा ताहिर, एक मिनट जरा ठहर जाए, ये 5 में कर लूं, इसके बाद तो समझाता हूं आगे। कंक्लूजन इज समवॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। जिस तरह से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आउटलाइन को डिस्कस किया होता है, किसी हद तक उस तरह से कंक्लूजन में भी हम उसका जो रिफ्लेक्शन जो है वो पेश करते हैं। क्योंकि आउटलाइन से जब हमने कंक्लूजन में कहना है कि इस एसे में ये चीजें डिस्कस हुई हैं, तो फिर जो जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो आउटलाइन ही है ना एक्चुअली उसकी। समझ आइए ना? ओके एक चीज का बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का कि वो आखिर तक थक गए होते हैं ना, वो कंक्लूजन पैराग्राफ में बस 2-3 सेंटेंसेस करके तो उसको वो फेंकने की कोशिश करते हैं। डू नॉट थ्रो अवे द कंक्लूजन पैराग्राफ जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द एसे। ये याद रखें, कंक्लूजन कोई इजाफी चीज नहीं है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एसे। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने पास टाइम रखें कि जी मैंने कंक्लूजन तक भी पहुंचना है, और कंक्लूजन भी मैंने अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है, उसके बगैर ऐसे कंप्लीट नहीं होती। सबरीना गलजई, ये बड़ा गलत सवाल है कि जी काइंडली हाईलाइट द टेंस प्रेफरेबल फॉर कंक्लूडिंग पार्ट। कोई टेंस की पाबंदी कभी नहीं लगाई जा सकती। देखो सबरीना, काफी सारे स्टूडेंट्स ये जिनको इंग्लिश का नहीं पता, वो समझते हैं कि टेंस जो है टेंस के मुताबिक लिखना होता है। ओ भाई, आपने जो लिखना है उसके मुताबिक टेंस मॉडिफाई होगा।
टेंस आपको गाइड नहीं कर सकता, आपने टेंस को गाइड करना होता है। एम आई प्रेजेंट? आपका दिल करता है फ्यूचर का बात करें, पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें। ये मुझे नहीं समझ आती कि हमारे स्टूडेंट क्यों पूछते हैं कि जी टेंस कौन सा लगाना है। भाई हो सकता है कभी कोई टेंस की पाबंदी लगाई जाए किसी टेक्स्ट के ऊपर कि जी सारा ये फ्यूचर में लिखना है, ये सारा पास्ट में लिखना है, ये सारा प्रेजेंट में लिखना है। ये कोई चीज नहीं है। टेंस आपके दिमाग में होता है, टेंस ने आपको गाइड नहीं करना होता। नहीं, मैं नहीं हमजा ताहिर, मैं ये पाबंदी नहीं लगाऊंगा फ्यूचर की, मैं ये पाबंदी नहीं लगाऊंगा। आपका जो नेचुरल एक्सप्रेशन के मुताबिक जो टेंस बन रहा है वो लगाएंगे। ये तो कोई बात ना हुई कि जी हमने थ्रेट लगानी है, चैलेंज लगाना है तो फ्यूचर का लगाएंगे। ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। टेंस आपका ताबे होता है, ना कि आप टेंस के ताबे हों। समझ आती है इस बात की? ये मुझे नहीं समझ आई कि कहां से टीचर्स ने हमारे दिमाग में ये घुसा दिया है कि जी टेंस के पीछे पीछे चलना होता है। नहीं, टेंस आपको, और मैंने अपनी लेक्सिकल कोहेजन में आपको दिखा भी दिया था सारा, ग्रामेटिकल कोहेजन में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसाइड होता है। हमारी कौम टेंस में फंसी रह गई है। When you start the conclusion paragraph, give a clear indicator that it is the conclusion of your essay. ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी कंक्लूजन पैराग्राफ जो है बस वो रूटीन में लिखते लिखते बस ये वाला पैराग्राफ भी लिख दें, एग्जामिनर को खुद ही समझ आ जाएगी कि आखिरी पैराग्राफ आपका कंक्लूजन है। सॉरी, एग्जामिनर की प्रॉब्लम है स्पीड रीडिंग, उसने जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। अगर आपने कंक्लूजन का जिक्र नहीं किया, अब जाहिर है हेडिंग तो नहीं ना देनी होती कि कंक्लूजन की हेडिंग है, तो आखिर में जब आप कंक्लूजन का पैराग्राफ शुरू करते हैं तो शुरू में कुछ ना कुछ जरूर लिखें कि ये मेरा कंक्लूजन पैराग्राफ है। मसलन इन कंक्लूजन, या कंक्लूसिवली वन में से दैट, या समिंग अप द आर्गुमेंट वन में से दैट, इस तरह की कुछ चीज। द एग्जामिनर मस्ट बी शोन दैट यू हैव कंक्लूडेड योर एसे प्रॉपरली। बस सबरीना, अब टेंस की बात दोबारा नहीं होगी बस। ओके, अब ये चीज जरा देख लें कि नेवर यूज द टर्म्स एट लास्ट या फाइनली या इन द एंड, कभी भी नहीं। उसकी रीजन पता क्या है? अभी मैं ऐसे वगैरह चेक कर रहे थे हम पिछले दिनों, उसमें भी ये आप लोगों ने लिखा जी फाइनली। भाई किस चीज का फाइनल है? इल्म खत्म हो गया? देयर इज नो एंड टू नॉलेज एट लास्ट, किस चीज का? देखें, इंप्रेशन एक्चुअली ये होता है कि ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतने टाइम के अंदर ये इतना ही डिस्कस हो सकता है, इसके अंदर मजीद भी बड़ी बातें हो सकती हैं। एट लास्ट क्या हुआ? ये एट लास्ट वो लिखते हैं वो जो फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली वाले हैं। गलत है ये। फाइनली क्या? फाइनली भाई तुमने आगे इससे इस टॉपिक पे कोई चीज डिस्कस नहीं हो सकती, ये जहालत लगती है। फाइनली बस ये आखिरी बात मैंने कह दी है, इससे आगे इसकी बात कोई नहीं है। कंक्लूडेड तो ठीक है ना, लेकिन ये जो बात लिखते हैं ना, या इन दी एंड आई वुड लाइक टू से, क्या एंड? किस चीज का एंड हुआ भाई? इस चीज के ऊपर तो मजीद अभी बहस हो सकती है। आपका टाइम खत्म हो गया है, आपने अपनी एसे कंप्लीट कर ली है, एंड तो नहीं हो गया ना चीज का। देयर इज नो एंड टू नॉलेज, बस ये याद रखें। ये एंड वाला वर्ड, फाइनल वाला वर्ड, ये कोई चीज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एंड योर कंक्लूजन पैराग्राफ ऑन अ रे ऑफ होप, सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड। ये बड़ा लाजमी होता है कि इसको ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म करना होता है। अदरवाइज कंक्लूजन पता है क्या निकलता है? मसलन वो जो ऐसे थी ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके एंड क्या निकलेगा? ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है, वी आर ऑल गोइंग टू डाई, द अर्थ इज गोइंग टू गेट ड्राई।
The earth is going to get so hot. Extinction of the human species. Destruction. तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना आखिर में, कहना चाहिए आखिर में आपने हमेशा ऑन अ रे ऑफ होप, वी हैव टू टेक एक्शन, यानी जो सजेशंस दी गई हैं एग्जैक्टली वेज ऑफ काउंटरिंग, आपने कुछ सजेशंस दी है ना इससे पहले, तो आप ये लिखे ना वहां पे कि बाय एक्टिंग ऑन दीज सजेशंस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी अवॉइडेड और काउंटर्ड और इस तरह की चीजें। कंक्लूजन पैराग्राफ का जरा याद रखें, ना तो मैंने इसकी कोई टेम्पलेट देनी है आपको और ना ही इसका कोई सैंपल है। कंक्लूजन पैराग्राफ को बस इस तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर शख्स कंक्लूजन डिफरेंटली लिखता है। इसका कोई एक सेट जो कहे ना, कोई बड़ा कोई टाइट किस्म का पैटर्न जिस तरह मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन के लिए और टॉपिक्स और पैराग्राफ्स के लिए, कंक्लूजन का नहीं कोई होगा। जी ठीक है शाहरोज, अच्छा लिखा है आपने, बट दिस सिचुएशन कैन प्रिवेंट यूजिंग, सिद्रा गुल ने जैसे लिखा है, आसमा रोमन ने जैसे लिखा है, तो ये ठीक है। ये स्लाइड मिल जाएंगी जनाब, अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूं। मसलन, although corruption has devastated the social, economic and moral fiber of Pakistani society, by acting out these suggested remedies, Pakistan again be set on the path to progress. See? ठीक है, करप्शन हमने जिक्र किया है ऐसे में कि इट हैज डेवास्टेटेड द सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल फाइबर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, लेकिन रेमेडीज दी गई हैं, तो हमने रेमेडीज क्यों दी हैं? इसीलिए दी है ना, ताकि इस सिचुएशन को जो है वो किया जा सके इसको। या एक ये फॉर एग्जांपल देखें इसको कि the picture of the climate change seems to paint a bleak future for mankind. However, it is a false impression. By acting out the suggested remedies, mankind can surely overcome climate change and reduce its negative effects for the better future of coming generations. तो इस तरह से आपने हमेशा पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है वो ऐसे को खत्म करना है। दैट्स ऑल जनाब। आमतौर पे मैं ये सजेस्ट करता हूं, कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है कि आप कंक्लूजन पैराग्राफ स्टार्ट करें, अपना थीसिस स्टेटमेंट जिक्र करें दोबारा। ये बात अब बाद लोग हैरान होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली आपकी ऐसे में 3 जगह पे आती है, आउटलाइन में, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में और कंक्लूजन पैराग्राफ में भी आ सकती है। आप कंक्लूजन पैराग्राफ शुरू करें, मसलन स्टार्ट द कंक्लूजन पैराग्राफ विद इन ए नटशेल, और यहां दोबारा अपनी थीसिस स्टेटमेंट रिआइटरेट दोबारा लिखें यहां पे। इसके बाद after this provide a brief summary of the outline highlighting the main points. This will automatically include the way forward or remedies in the conclusion paragraph. अक्सर लोग ये कहते हैं ना जी वे फॉरवर्ड देना होता है कंक्लूजन में, और भाई अलग से नहीं देना। जब आप आउटलाइन लिखेंगे तो उस आउटलाइन के अंदर वे फॉरवर्ड भी तो शामिल था ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंक्लूजन पैराग्राफ में आ जाएगा। उसके बाद you may round off the conclusion paragraph with hopeful sentences. So ये इसका मेथड जो है कंक्लूजन को लिखने का, वो मैंने आपको पेश कर दिया। स्टार्ट विद इन ए नटशेल या इन कंक्लूजन थीसिस स्टेटमेंट दें, उसके बाद समरी ऑफ द आउटलाइन दें, और उसके बाद होपफुल सेंटेंसेस आखिर में दें, एंड आपका कंक्लूजन कंप्लीट है। अब कोई क्वेश्चन हो तो जरा पूछ लें।
जी स्टूडेंट्स, हो गया है, चलेंगे। इन शॉर्ट हाँ कैल कोई भी चीज कह सकते हैं आप, मतलब तो उसका यही बनता है ना कि ये ले जनाब, ये मैं आपकी स्लाइड्स आपको आपके ग्रुप में थीसिस स्टेटमेंट ना रिफ्रेज ना भी करें विकास, अगर कर सकते हैं रिफ्रेज तो अच्छी बात है, करें जरूर, लेकिन अगर ना भी करें डायरेक्टली थीसिस स्टेटमेंट दोबारा लिखते हैं तो फिर भी ठीक है। जावेद कौन है यार? बशीर कौन हो तुम? जरा 15 में, अच्छा ये आ गए। ये ले जी, ये मैंने पूरे का पूरा पैराग्राफ ही आपको टाइप कर दिया वहां पे व्हाट्सएप में, ये सारी चीज भेज दी आपको। मुबशर जावेद, हाँ ये अब ये जो लड़का है हमजा ताहिर, ये इसमें शामिल नहीं है इस ग्रुप में व्हाट्सएप में, तो इसको अब नहीं मिला होगा। आप जरा आपस में सॉल्व कर लें जरा मसला। नहीं उस्मान नहीं, ये मैं शुरू में क्लियर कर चुका हूं कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ऐसे के अंदर इनफॉर्मल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे उस्मान उसमें हमेशा एक वो याद आता है, वो चर्च के बाहर लिखा हुआ था कि इफ यू वांट टू hear the voice of God, come inside church में. If you want to talk to God, take part in the prayer. And if you want to see God with your own eyes, try texting while driving. If you want to meet God, try texting while driving. ये जब भी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं ना सर इनफॉर्मल लैंग्वेज, मोस्ट वेलकम, बड़ा सादा सा तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। इफ यू वांट टू पास द सीएसएस एसे, यूज फॉर्मल लैंग्वेज। इफ यू वांट टू फेल सीएसएस एसे, यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल। कोई ज्यादा पेचीदगी नहीं है उसमें। जी मैं जीपीएस की तरफ आने लगा हूं, पहले मैं जरा थोड़ा सा ओवरव्यू पैराग्राफ जो है वो भी कर दूं आपको, और फिर हम आते हैं जीपीएस की तरफ। ओवरव्यू पैराग्राफ ये कहां होता है? ओवरव्यू पैराग्राफ एक्चुअली ना है बहुत सिंपल चीज, लेकिन ये बेचारा जितना सिंपल है उतना ही लोग इससे डरते हैं, परेशान होते हैं। इसकी जो सादगी है ओवरव्यू पैराग्राफ की, वो हमारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। जी जी रेड मार्कर ऑफ कोर्स तो सीख। अच्छा मैं अक्सर आप लोगों को ना वो स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आप चेक करें हमारी असाइनमेंट्स, आप चेक करें, ये है वो है, तो मैं मना करता हूँ स्टूडेंट्स को ज्यादातर। उसकी वजह यह है कि मेरा जो है ना रेड पेन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरा पेन वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है।
मुझसे फिर वो गलतियां ओवरलुक नहीं होती जो थोड़ी सी आपको शुरू के स्टेज में जरा नरमी इख्तियार करनी होती है. माई पेन इज वेरी स्ट्रिक्ट. और जो फिर इसके नीचे से निकल जाता है ना, इसमें से पास हो जाता है इस रेड पेन के नीचे से, वो फिर एफपीएससी में फेल नहीं होता कम से कम. इस दफा भी जो रिजल्ट आया है वो उसमें अबाउट 80%, 85% ऐसे लोग जो मुझसे पास हो गए हुए थे फिर वो फेल नहीं हुए. सिर्फ अभी तक मुझे 3 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर आपने 42 मार्क्स दिए थे, या किसी ने कहा कि जी आपने 41 दिए थे, 40 दिए थे, लेकिन अब मेरे 35 आए हैं. सिर्फ 3 स्टूडेंट अभी तक मुझे मिले ऐसे कि जो मुझसे पास हुए और अब फेल हो गया, वरना अदरवाइज ऑल ऑफ देम हैव पास्ड, सब लोग. और वो अपने 40, 45, 50 वो मार्क्स लेके. तो ये मेरा काफी मशहूर है कि इनसे जो पास हो जाता है वो फिर एफपीएससी में नहीं रुकता. आप अभी हैं स्टार्ट में, आपने अभी बेशुमार छोटी छोटी चीजें, वो मैं अगर उसके ऊपर रोकने लगूं तो मुमकिन है मैं आपको 100 में से 4 नंबर दूं या 5 नंबर दूं या 7 दूं. जबकि जो एग्जामिनर्स हैं उनको मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि थोड़ा सा शुरू में लीनियंट करेंगे, इनको कम से कम 20, 25, 30 नंबर मिलने चाहिए ताकि थोड़ी सी इंकरेजमेंट रहे. और अगर किसी बंदे को शुरू में ही 16 नंबर मिले 100 में से, तो बाद पीपल फील हार्ट ब्रोकन. वेयर एज इंपॉर्टेंट एसे के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा चलाना भी है इसके अंदर. ऐसे वही शख्स अल्टीमेटली सक्सीड होता है जो जिसने काफी सारी एसेस लिखी होती है. हमारे स्टूडेंट एक ऐसे लिख के उसकी 10 फोटोकॉपीज कराते हैं, वो 10 जगह से चेक कराते हैं और हर जगह से अलग अलग व्यूज मिलती हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं जी क्या करें क्या ना करें. तो आप करी कोशिश उसकी कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं, 10 लोगों को आप चेक करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? उसका मतलब ये है ना कि किसी पे एतबार नहीं है, शायद वो ठीक हो, शायद वो ठीक हो. तो क्या ऐसा बंदा कहां पहुंचेगा? वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा. ये चक्कर है. मुझसे 10 मार्क्स लिए थे ना, बस अब 20 ही आए हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं आए ना. या तो कहो ना मुझसे 10 नंबर लेके तो वहां पे 40 नंबर जमर उसने ले लिए हैं. सबरीना मेरी कोई फेवरेट टाइप नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश दोनों बराबर है. अच्छी चीज, अच्छी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए. नहीं, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए. ब्रिटिश अमेरिकन कोई फर्क नहीं. ये मतलब एज चॉइस इज कंसर्न, ब्रिटिश अमेरिकन में है क्या डिफरेंस? किस चीज का? वर्ड्स का है बस. कोई लैंग्वेज तो नहीं ना, एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं ना हो सकता. ओके. ओवरव्यू पैराग्राफ. हाँ तो वही ना, एक बिस्किट है कि कुकी है, तो क्या खा के देखो ना दोनों चीजें जरा. All right, students, let's come to the overview paragraph and then we will move on to the GPEST. The overview paragraph is actually होता ये है, अब जरा गौर से सुनना, जरा एक मिनट गौर से सुनना जरा. अनम मिल गया ना तुम्हें कुछ ना कुछ मजे की चीज खाने को इसमें. ओके. आप मुझे ये बताएं, पैराग्राफ राइटिंग आपने की है, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस 1 आपका टॉपिक सेंटेंस है, सेंटेंस 2 उसकी रीजन या एक्सप्लेनेशन पेश करता है. आप बताएं मुझे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 in the academic structure, like academic paragraph? Very good, Zamar. Yes, Zamar, Zakriya. It does not support, Sharoz. सपोर्ट जो है वो सेंटेंस नंबर 3 है, मैं सेंटेंस नंबर 2 पूछ रहा हूं आपसे.
आपने पैराग्राफ राइटिंग की है ना, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस 1, तो फिर मोइज अगर वो एक्सटेंशन है तो वो क्या सेंटेंस 1 की क्या चीज है जो सेंटेंस 1 में हम नहीं लिख सकते और सेंटेंस 2 में लिखते हैं? Second one elaborates or gives its reason, explains the topic sentence, it claims an explanation, explanation of sentence 1. यानी जो टॉपिक सेंटेंस है वो उसको एक्सप्लेन करता है. स्टूडेंट जरा हिस्सा लें इसके अंदर, इस डिस्कशन में. ये ओवरव्यू देता है टॉपिक सेंटेंस का. ओके, एस्टैब्लिश आर्गुमेंट ग्राउंड भी हो सकता. ये भी ठीक है शारोज, यू राइट. इंट्रोडक्शन, किंजा इंट्रोडक्शन का वर्ड ना यूज करें. आप मुझे सेंटेंस नंबर 2 बताएं कि सेंटेंस नंबर 2 क्या करता है. सेंटेंस नंबर 2 वो सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेनेशन, रीजन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, यही देते हैं ना सेंटेंस नंबर 2. रीजनिंग देता है. ठीक है. आपका जो ओवरव्यू पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, एग्जैक्टली वही काम करता है एसे में जो सेंटेंस नंबर 2 करता है पैराग्राफ में. आई रिपीट, पैराग्राफ नंबर 2, पहला आपका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन था ना, जैसे टॉपिक सेंटेंस था. उसी तरह से जो सेकंड सेंटेंस ने जो काम किया था, वो जो एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स थे, एग्जाम्पल्स थी सेंटेंस नंबर 1 की, ओवरव्यू पैराग्राफ वही काम करता है ऐसे के अंदर. इंट्रोडक्शन में हमने कहा था ना, इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स नहीं देनी, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस नहीं देनी, इंट्रोडक्शन में स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं देने. हमने सिर्फ अटेंशन ग्रैबर देना है, आउटलाइन की रिफ्लेक्शन देनी है, और उसके बाद हमने तीसरी स्टेटमेंट देनी है. तो वो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स थी सारी, वो जो टॉपिक जब आपके सामने आया है तो आपने उसकी जो टॉपिक को एक्सप्लेन करना था वो कहां करेंगे? वो आप पैराग्राफ नंबर 2 में करेंगे. ये है ओवरव्यू पैराग्राफ नंबर 2. समझ आएगी इस चीज की? Overview paragraph gives details of the topic. अब आप बेसिकली जो फर्क कर रहे हैं ना, आपको प्रॉब्लम जो आ रही है वो है, मैं दो चीजें अलग अलग करना चाहता हूं. मैं कहता हूं एक चीज टॉपिक है और एक एसे है. Overview paragraph gives details of the topic, not of the essay. This paragraph is written immediately after the introduction. It carries the necessary statistics or definitions of key terms required to understand what the essay topic statement means. अब देखो, आपकी essay topic statement जो थी, essay का जो topic था, वो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कर्स. ये जो ब्लेसिंग कही गई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग कैसे है? ब्लेसिंग का वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ क्यों यूज किया गया है? भाई इसलिए यूज किया गया है बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड सेवरल बेनिफिट्स टू मैनकाइंड. दैट इज व्हाई सम पीपल बिलीव इट इज अ ब्लेसिंग. फिर कर्स का वर्ड आया है, कर्स को भी एक्सप्लेन करते हैं. Curse is something which has a negative effect on human life. Information technology has also created certain negative effects on human life. That is why it is also considered a curse. बस ये ओवरव्यू पैराग्राफ हो गया. आपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, अभी आगे बढ़ के एसे का स्टार्ट नहीं करना.
मैंने जो दो चीजें एक्सप्लेन की हैं, मैंने डिफाइन किया है ब्लेसिंग क्या चीज है, मैंने डिफाइन किया कर्ज क्या चीज है। मैंने ये तो नहीं बताया कि हम इसको ब्लेसिंग समझते हैं कि कर्ज समझते हैं। नो, अगर मैं वो बताऊं तो फिर मेरा ऐसे का स्टैंस नजर आ गया। हम वो तो बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पे, एंड दैट्स ऑल। अब बताएं, क्लियर हुआ? दिस पैराग्राफ इज लिमिटेड टू elaborating the topic and it does not start the essay argument that is done in the next paragraphs. कर सकते हैं अगर जम्मार ये वाले स्टेटिस्टिक्स अगर आपने आगे यूज करने हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, गुंजाइश नहीं है। यहां पे आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं, बॉडी पैराग्राफ्स की बात ही नहीं हो रही ना अभी। आप ये स्टेटिस्टिक्स आगे रिपीट करने कर लीजिएगा, लेकिन पहले केस तो एस्टेब्लिश कर लें। लेट मी शो यू, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये देखें जरा, ऐसे आपका टॉपिक है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? जरा गौर कीजिएगा। द क्राइसिस सिचुएशन रिलेटेड टू वाटर is defined by a UNDP report 2018, which shows that by 2022, Pakistan will become a water-scarce country. In 1957, Pakistan used to have 5,000 MAF per capita water, which shrunk to 1089 MAF in year 2012. Current statistics show that Pakistan has only 1057 MAF as per capita water available. This is expected to fall below 1000 MAF by 2022 when Pakistan would be declared as a water deficient country. This clearly shows that Pakistan is going to face water scarcity, which will prove to be a major crisis and an existential threat for the country. अब जरा गौर करना इसके अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। करंट स्टैटिस्टिक आप गौर करें, 2018, ठीक है? उसके बाद मैंने कौन से ईयर का जिक्र किया है? 1957 का। उसके बाद कौन से ईयर का जिक्र किया हमने? 2012 का। और 2022। अब आप देखें कि हमने 5 ईयर्स का जिक्र किया है, 4 ईयर्स का। 1957, आगे बढ़ते हैं 2012, आगे बढ़ते हैं 2018, आगे बढ़ते हैं ईयर 2022। ईयर्स आगे जा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा पानी की सिचुएशन। 1957 में कितनी थी? 5,000। 2012 में कितनी रह गई? 1089। करंटली कितनी है? 1057। आगे चल के कितनी हो जाएगी? 1000। अब नजर आ रहा है, ईयर्स आगे बढ़ रहे हैं, वाटर जो है वो नीचे जा रहा है। 5000 से 1089 रह गया, 1057 रह गया, आगे चल के 1000 रह जाएगा। क्या ख्याल है? अब क्लियर पिक्चर नजर आई कि नहीं आई? हमने अभी डिस्कशन नहीं की क्राइसिस, कॉजेज, इफेक्ट्स, रेमेडीज क्या हैं। पहले ये तो एस्टेब्लिश कर लें कि क्राइसिस सिचुएशन पाकिस्तान में है भी कि नहीं है। ये होता है ओवरव्यू पैराग्राफ। नौरीन, कर्स और ब्लेसिंग में स्टांस लेना होता है ना, तो वो तो आप आगे चल के स्टांस लेंगे ना ऐसे के अंदर। पहले ये तो बता लें कि कर्ज कहते क्यों है इसको। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मशीन होती है, उसको आप क्यों कर्ज कहते हैं, ब्लेसिंग क्यों कहते हैं? स्टांस नहीं लेना। नंबर 2 पैराग्राफ में स्टांस का कोई ताल्लुक नहीं है। नौरीन, बात की समझ आई है? भाई पहले ये तो बात कर लेना कि ब्लेसिंग और कर्ज होती क्या है, उसके बाद स्टांस लेंगे ना। पैराग्राफ 3 ऑनवर्ड्स। सो ये पैराग्राफ 2 होता है जिसके अंदर आप पहले डिफाइन तो कर लें कि भाई क्राइसिस है क्या।
मैं शायद आपको पहले इसकी एग्जांपल एक दे चुका हूँ, ये वाटर क्राइसिस वाली ही ऐसे की, कि किस तरह से स्टूडेंट एक दफा हमारे पास आया था और बताया था आपको पहले वाटर क्राइसिस की जो सिचुएशन, यानी ओवरव्यू पैराग्राफ होता क्या है बेसिकली। मैं लाहौर में था, ये 2018 की बात है। हिना रफीक, अगर अभी तक आपको थीसिस स्टेटमेंट की और स्टांस की समझ नहीं आई तो मेरा नहीं ख्याल मैं मजीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टांस एक्सप्लेन करता है। ये तो ऐसे ही है ना कि जनाब एबीसी में और सेंटेंस में क्या फर्क है। लो हुआवे, पहले तो तुम्हारा नाम ही कोई नहीं है और अब कहते हैं जी इस ओवरव्यू को शॉर्टली रिव्यू कर दें। यार मुझे पढ़ाने का क्या फायदा। अभी मैं दूसरी दफा बोलूंगा फिर आप पूछेंगे तो मुझे पढ़ाने का क्या फायदा अगर मैंने उसको रिपीट करते रहना हर वक्त। मेरी मिसाल सुन लो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी सारे का सारा क्या है। यू आर डिस्कनेक्टेड, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। इस तरह तो 80 बंदे बैठे हुए हैं, हर बंदा डिस्कनेक्टेड होता है तो मैं तो एक ही चीज को दोहराता रहूं ना। अब गौर से मेरी बात सुन लो, तुम्हें ओवरव्यू को समझ आ जाएगी। आई वॉज इन वर्ल्ड टाइम्स एट दैट टाइम। एक स्टूडेंट आया लाहौर में, उसने ऐसे लिखी हुई थी वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। उसके बाद वो नंबर 2 जो था वो स्टार्ट हो गया, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस। मैंने उससे पूछा कि यार वाटर क्राइसिस किधर है, ये तो तुमने इंट्रोडक्शन लिखा ना और उसके बाद तुम कॉजेज के ऊपर चले गए, क्राइसिस कहां डिफाइन किया। सोच में पड़ गया। मैं कह यार मुझे बताओ ना क्राइसिस कहां है ऐसे के अंदर। ये चलो मुझे अपनी आसपास में से ही बता दो क्राइसिस कहां। लाहौर से हो? हाँ जी लाहौर से हो। तो मैं कह तुम्हें महसूस होता है अपनी लाइफ में कि वाटर क्राइसिस है, कोई किसी किस्म की पानी की कमी है कहीं पे। थोड़ी देर सोच के मुझे उसका चेहरा आज तक याद है। कहते सर हमारे घर में तो मोटर लगी हुई है, तो हम तो सर मोटर चलाते हैं तो टैंकी भर जाती है पानी की, तो हमें तो पानी का कोई मसला नहीं किसी किस्म का। मैं क्या, अगर तुम्हारे घर मोटर लगी हुई है तो, तो मुझे बताओ वाटर क्राइसिस है कहां पे फिर। सोचता रहा। मैं क्या तुम बताओ सिर्फ तुम्हारे घर में मोटर लगी हुई है कि और घरों में भी। और नहीं सर जी वो लाहौर का था ना तो उसका लहजा भी, नहीं सर जी यहाँ तो हमारे जो हमसाए हैं सर उनके घर तो बड़ी वाली मोटर लगी हुई है, वो जो रॉकेट बोर नहीं होता वो रॉकेट वाली लगाई हुई है उन्होंने। तो वो तो इतना मोटा पाइप जो है उससे वो सुबह सारी गली धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं, गेट धोते हैं, सारी की सारी। वो तो हमारा गेट भी धो देते हैं। हाँ सर मैं क्या, अच्छा मुझे ये बताओ मैं क्या तुम ये आते हो किस साइड से, किस जगह से आते हो। तो दोनों वाले पूरे साल पहले नहीं पड़े, दोनों वाले कपड़े आए। अच्छा मैं कहाँ से आते हो, कहते जी मॉल रोड साइड से आता हूँ। मैं क्या मॉल रोड से आते हो तुम नहर के ऊपर से गुजरते हो ना। वो यस सर, नहर देखे हर वक्त पानी से भरी होती है और उधर हम रावी पे जाते हैं तो रावी में भी पानी होता है। तो सर तो मैं क्या वाटर क्राइसिस है कहाँ। कहते सर बस किताबों में लिखा हुआ है, अखबारों में लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया था वरना। अच्छा तो मैं क्या, इसका मतलब है कि वाटर क्राइसिस है कोई नहीं, ये बस हमारी किताबी बातें हैं। उसने मेरे आगे से ऐसे उठा ली। कहते सर ये तो सारी ऐसे ही गलत है, वाटर क्राइसिस तो है कोई नहीं। अब समझ आई, अब समझ आई इसकी सेकंड पैराग्राफ की क्या जरूरत है। अब तुम्हें वो ब्लेसिंग और कर्स सारी चीज की समझ आ जाएगी कि पहले एस्टैब्लिश तो कर लें कि क्राइसिस है भी कि नहीं। मतलब है नहीं, आप फालतू ही लिख रहे हैं सारा, आपके घर में टंकी नहीं लगी हुई, मोटर नहीं लगी हुई। नहीं उसने पिछली दफा भी इम्तिहान नहीं था दिया, उसने इस दफा भी इम्तिहान नहीं दिया। अब वो
उसके बाद जो था, क्योंकि वाटर क्राइसिस एस्टेब्लिश नहीं था हो सका, सो अब वो बड़ा जबरदस्त वो स्पिन बॉलिंग उसने सीखना शुरू कर दिया, और यहाँ पे कोई क्रिकेट कैंप लगता है मिसबाहुल हक का, उसके अंदर दाखिल हो गया वो। मुझे अब वो वीडियो भेजते हैं, आपकी गुगली बड़ी अच्छी कराता है। सो आज तुम लोगों को ये समझ आ गई है कि ओवरव्यू पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप वाटर क्राइसिस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो फिर गूगली बॉलिंग सीख ले। ये याद रहेगी ना स्टोरी। ये अब कोई भी टॉपिक आप सोचा करेंगे ना, आपको फौरन जहन में आएगी कि सर वो यस सेकंड पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हमने वो एस्टेब्लिश ना किया तो हमारी ऐसे सारी बेकार जाएगी। तो ये है चक्कर, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे स्टूडेंट्स को बड़ा क्लियरली समझाने की जरूरत है कि ओवरव्यू पैराग्राफ जरूर दिया करें, अदरवाइज ये ओवरव्यू नहीं भूलता वो आपको। चलें जी। बस लास्ट में थोड़ी सी जरा वो जीपेस्ट वाली बात भी रहती है, मैं जरा वो आपको जल्दी जल्दी जो है वो बयान कर दूं। एफपीएससी वालों को क्या पता किसके घर में मोटर है, और रॉकेट बोर वाली ज्यादा पानी वाली मोटर चाहिए। मैं जीपीएस का आपको ना एक वो करना चाहूंगा। दुनिया बड़ी मजेदार, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहां भरे हुए हैं। हाँ, ओवरव्यू शहरोज आज समझ आ गई है ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये देखिए जीपेस्ट, अब जरा समझ लेना इस चीज को। कोरिलेशन ऑफ जीपेस्ट के बुनियादी तौर पे जब हम आउटलाइन बनाते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जब हम पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, तो आपने उन पॉइंट्स को अरेंज इस तरह करना है कि सबसे ऊपर जो है वो पॉइंट्स आने चाहिए गवर्नेंस के। गवर्नेंस से मुराद है कि कोई भी जो पॉलिसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, और पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, या किसी भी इदारे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम गवर्नेंस कहेंगे। गवर्नेंस के पॉइंट सबसे पहले देने होते हैं, और उसके बाद जो है गवर्नेंस, जैसे पाकिस्तान में भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पॉलिटिक्स को बाकायदा डिक्टेट कराती है। गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, ऑल्दो रियल वर्ल्ड में पॉलिटिक्स जो है वो ऊपर होती है, गवर्नेंस बाद में आती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप बात कर रहे हैं नेशनल इश्यूज की तो सबसे ऊपर गवर्नेंस आएगी, उसके बाद पॉलिटिक्स आएगी, और पॉलिटिक्स फिर इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को। पॉलिटिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को, इसलिए इकोनॉमी के पॉइंट इसके बाद आने चाहिए, और इकोनॉमी जो है वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। जैसी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आएंगी, सेम उसका इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी के ऊपर नजर आता है, और सोसाइटी जो है ये फिर टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करता है। हमारी जो आउटलाइन होती है उसके अंदर जो पॉइंट्स टेक्निकल हैं, टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इसको हम टेक्निकल भी कहेंगे, क्योंकि टेक्निकल से मुराद ये है कि जो भी उस टॉपिक के स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो टेक्निकल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक एजुकेशन का है तो उसके अंदर जो टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या उसका जो रिसर्च से मुतालिक जो, या लेबोरेटरी से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेक्निकल में आएंगी वो। या अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई टॉपिक है तो उसके अंदर इकोनॉमी के जो पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके, फॉर एग्जांपल डिमांड का, सप्लाई का, प्राइसेस का जो रिलेशनशिप है तो वो टेक्निकल में आता है। लोगों से मुतालिक, पीपल से रिलेटेड कोई भी चीज है, दैट इज सोसाइटी।
इकोनॉमी इज मनी रिलेटेड। अकीला, एक तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया इकोनॉमी, मनी से रिलेटेड कोई भी चीज, और फिर पॉलिटिक्स है, फिर उसके बाद। सो ये इस तरह से ये सीक्वेंस इसका आपने अरेंज करना होता है। एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं गवर्नेंस के, एक से दो पॉइंट्स हो सकते हैं, दो तीन पॉइंट्स गवर्नेंस के हो सकते हैं। और लाजमी नहीं कि सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें पूरी हों किसी भी आउटलाइन के अंदर। बाज़ औक़ात आपके पास गवर्नेंस का पॉइंट है, पॉलिटिक्स का नहीं है, पॉलिटिक्स का है, इकोनॉमी का नहीं है, सोसाइटी का नहीं है। इस तरह से ये है जीपेस्ट। इट्स लाइक अ टॉप डाउन अप्रोच। एग्जैक्टली। ये सिंपल चीज है, इसका सिर्फ एक काम है। मैं अब ये भी एक्सप्लेन कर दूं, ऐसे के अंदर आप खामखा जो है वो कंफ्यूज ना हो। जीपेस्ट का सिर्फ ये काम है कि ये आउटलाइन के पॉइंट्स को अरेंज करें इससे, जिससे आपकी एसे में कोहेरेंस आ जाती है। अदरवाइज अगर आप ये ना लगाएं तो क्या होता है, मुमकिन है आपने कुछ सोसाइटी का पॉइंट शुरू में दे दिया है, पॉलिटिक्स का बाद में दिया है, मुमकिन है इकोनॉमी का पॉइंट जो है वो आखिर में आया है, पहले गवर्नेंस का नहीं आया, कुछ और चीजें। तो ये बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स अक्सर औकात इनके पैराग्राफ्स तरतीब नहीं होती। तो इस तरह से फिर आपको एक टॉप डाउन जो है वो एक तरतीब लगाने का एक मेथड मिल जाता है, सिर्फ आउटलाइन की हद तक, टू गिव सीक्वेंस, जिससे ऐसे के अंदर कोहेरेंस पैदा हो जाती है। एंड दैट्स ऑल। और ये भी आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। एग्जामिनेशन में जब हम लिखते हैं आउटलाइन तो उस वक्त ये नहीं लिखे जाते GPEST। ये सिर्फ अपनी आपका रफ वर्क जहां आप करते हैं वहां पे ऐसे को अरेंज करने का है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए स्टूडेंट्स को मौका मिलता है अपनी अपनी एसे को, अपनी आउटलाइन को ऑर्गेनाइज करने का। ये एक इजी मेथड है, सामने शॉर्टकट है। बस जनाब, इसकी पिक्चर मैं आपको भेज देता हूं। GPEST। आज वो एक बस वो स्टेटस लगा बैठा हूं मैं, वो व्हाट्सएप मेरा जो है वो भरा हुआ है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। आखिरी बस एक चीज मैं सिर्फ शेयर करना चाहूंगा। नहीं तो सीख, तुम बाद आ जाओ, ये पेस्ट कंट्रोल नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं अभी अभी ठीक हुआ हूं ना बुखार से। टाइफाइड बुखार जिसका ना उतरता हो वो राब्ता करे हाजी नियामत मुर्ग वाले। फोन नंबर चाहिए ये वाला? तो मैंने अपने स्टेटस में लिखा हुआ है कि मैं इसके बगैर ही ठीक हो गया, मैं महरूम रह गया इस इलाज से, वरना जो था वो मैं जरूर इनसे इलाज करवाता। नहीं, मैंने यहां से दवाई नहीं ली। ओके, बस बच्चों। टाइफाइड बुखार जिसका नाम ठीक होता हो। यस अनु, एग्जैक्टली। अच्छा जी, बस ये टाइम हो गया। एंड आई होप कि आज हमने जो चीजें लिस्ट आउट की थी सारी पूरी कर ली है हमने। वी हैव डन दी कोहेजन कोहेरेंस कंप्लीट की है, कंक्लूजन पैराग्राफ एंड दी जीपेस्ट आपने कहा था, ओवरव्यू कहा था। वी हैव डन ऑल दिस, राइट? ओके जी, हम बंद करते हैं अब। खुदा हाफिज जी। असाइनमेंट आपको मिल गई है पूरी, ऐसे अब आपने लिखनी है, योर ऑन योर ओन। थैंक यू। खुदा हाफिज।
सो वाटर क्राइसिस का ख्याल रखना है आइंदा जब